جنوبی پنجاب دا مان ببر شیر عثمان بزدار زندہ باد، عثمان بزدار زندہ باد۔ بھائی پریس کانفرنس ہے جنید صاحب یہ نہ کرے، بڑک مارنے سے تو نہ منع کرے۔ پریس کانفرنس ہے سر۔ جنید صاحب پاکستان کی حکومت کے دلہا عمران خان کا سوالہ، فیورٹ سٹار آف بنی گالا، پی ٹی آئی کی چھت کا بالا، مخالفین کہتے رہے مجھے کیوں نکالا، مگر بوزدار نے پنجاب کو ترقی کی راہ پہ ڈالا، اسی لیے گلے میں پہنے ہوئے مالا، سب سے اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعلیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے جنید صاحب۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، لیکن ذرا بتا دیں کہ کس نے آپ کو یہ اعزاز دیا، کس بنیاد پہ یہ اعزاز؟ جنید صاحب یہی تو میں ادھر پتہ کرنے آیا ہوں، وہ 3-4 بندے مجھے بھی ملوائیں جنہوں نے میرے حق میں ووٹ دیا ہے۔ دیکھیں میں تو جو آپ کے لیے کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے۔ میں نے باہر کچھ لوگوں کو اندر آنے سے روکا ہوا ہے، وہ مسلسل یہ سوال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھنا ہے کہ اگر آپ کی کارکردگی سب سے اچھی ہے تو باقی پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ جنید صاحب یقین ماننے مجھے بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب سے بہترین وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہے، مگر جب یہ مجھے انعامات اور کپ وصول ہوئے ہیں نا تو پھر مجھے یقین آنا شروع ہو گیا تھوڑا تھوڑا کہ عثمان بزدار اللہ نے تجھے عزت دے دی۔ اچھا مساز صاحب، یہ جو آپ کو کپ شپ ملے ہوئے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، وہ گپ شپ ہوتی ہے، یہ کپ شپ نہیں ہے، یہ کپ ہیں، یہ 3 سال کی محنت کا نچوڑ آپ کے سامنے پڑا۔ بتائیں نا جنید صاحب تفصیلات کیا بتاؤں، اللہ جانتا ہے اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ یہ تو کپ جنید صاحب بنی گالا نے ٹی سی ایس کروایا ہے، آپ دیکھ کے ذرا۔ لو جی بزدار صاحب، اے بنی گالا والے نے نا کوئی اپنا ہی پرانا کپ پیا تانوں بھیجدا جے، کارکردگی تاری حکومت دی ہے، تے کپ تے ویکھو اوتے وکٹاں تے بلا بنیا پیا۔ نہیں تو وسیم اکرم پلاس ہور تینوں کہندے نے، وسیم اکرم کرکٹ ہی کھیڑدا سی اور بیٹ گیند نال ہی کھیڑدا سی، کوئی ڈنڈے تے گلی نال نہیں سی کھیڑدا۔ اور یہ کپ جنید صاحب جس کے اوپر کڑائی بنی ہوئی ہے، یہ بٹ کڑائی والوں نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا جناب جنی بٹ کڑائی تو آڈے بندیاں آ کے تو سے تو کھا دیئے نا، اینی باروں کسے شہر دے بندیاں نہیں آ کے کھا دی۔ یہ جنید صاحب فتح گڑھ چوڑیاں پرائمری سکول والوں نے بھیجا ہے، اور آپ یقین مانے یہ انہوں نے جلدی کیا بھیج دیا ہے، یہ بھی بڑا ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا جناب اب اناؤنسمنٹ جلدی ہو گئی ہے، اس لیے کچا کچا ہی توڑ کے بھیج رہے ہیں۔ چلے رکھ لیں اس کو، پانی کھاد ڈالتے رہے، بڑا ہو جائے گا یہ بھی۔ وہ کہتے تھے ہم نے تو سوچا تھا 5 سال بعد آپ کو دیں گے، اس وقت تک یہ کم از کم ایڈا کو تو ہو ہی جانا۔ اور جنید صاحب یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ توسا کے جو کھال ونڈا مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن ہے نا، یہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا جناب جتنی ترقی آپ کے دور میں ہوئی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اور جنید صاحب میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، بس یہ تو پاک پتن شریف والوں کا کرم ہو گیا ہے مجھ پہ۔ جنید صاحب یہ داتا صاحب کی جوتیوں کے مٹی کے صدقے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، یہ تو کلندر پاک دیے جلائے ہوئے کام آ گئے ہیں جنید صاحب۔ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بلکہ مخالفین تو سمجھ ہی گئے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنید صاحب کام بولتا ہے، جی ہاں، جو کام ہوتا ہے نا وہ بولتا ہے، کام گونگا نہیں ہوتا، کام جو بھی بندہ کرے نا اس کا پھر کام بولتا ہے، کام کو اللہ نے زبان دی ہوئی ہے، کام بول پڑتا ہے، اور آپ کے بھائی نے جتنا کام ایک کیا، کام کو اور ایک کان کو بولنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ نہیں جنید صاحب کان کو تو پھر چھرا مار کے بندہ چپ کرا سکتا ہے، کام نہیں چپ کرتا، وہ بولتا ہی بولتا، اور اللہ نے بڑا کرم کیا۔ جنید صاحب میں آپ سب کو یہ مبارکباد دینے آیا ہوں کہ آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو، اور جنید صاحب آپ تو خیر آرٹسٹ آدمی ہیں، میڈیا کو منہ کی کھانی پڑی۔ کیوں؟ یہ جو 3.5 سال سے میڈیا والے لگے ہوئے تھے نا کہ عثمان بزدار کک پان کے دورہ نہیں کرتا اور نہ کر سکے گا، ان کو اب
पता चल गया है। आपने साबित कर दी है बुज़दार साहब। जुनैद साहब मैंने क्या साबित करना है, ये तो मौला का ही करम हुआ है। अच्छा बुज़दार साहब देखें, आपको वसीम अकरम प्लस कहा जाता है। वसीम अकरम ने अपने कैरियर की पीक पे क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था, अब आपको ये अवार्ड मिल गए, आपको बेहतरीन वजीर आला का अवार्ड मिल गया, क्या ख्याल है? नहीं जुनैद साहब अभी पीक नहीं ना आई, अभी इसने वड्डा होना है। जुनैद साहब इस मासूम का यही गला ना दबाएं। अब मैनू जुनैद साहब बस 10 साल होर दे देवो, अब पूरा टेबल भर देसा। जुनेद साहब हाले तो जेड़े डू अंडरपास बुज़दार साहब ने लाहौर दे विच बनाए ने ओही तैयार थींदे पैन के असा कप तैयार काटी ते जल्दबाजी ना करना। अच्छा बुज़दार साहब चले, आपको मुबारकबाद भी हम देते हैं और इस खुशी के मौके पे आपका मूड भी बहुत अच्छा है, तो आप कुछ मजलूमीन की दुआएं भी समेट लें साथ। आप हुक्म करें जुनैद साहब, मैं तो हमेशा मीडिया का ताबेदार रहा हूं, मीडिया मेरे साथ कॉपरेट नहीं करता। नहीं सर, आप जो भी अच्छा काम करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे सर। लाहौर की सड़कों पे पिछले कई दिनों से ये जो वाटर मैनेजमेंट महकमा ज़राअत के गालिबन अंडर आते हैं, सैकड़ों मुलाजमीन ये बर्फ सर्दी में बैठे हुए हैं, सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, ऊपर प्लास्टिक कवर लेके बैठे हुए हैं। उनको सर मुस्तकिल कर दें, वो बेचारे एक फाइल है जिस पे सिर्फ आपके सिग्नेचर चाहिए। जुनैद साहब सिग्नेचर हो गए, समझो सिग्नेचर हो गए, पक्का वादा? उनकी सारी सर्दी का भी बंदोबस्त। बात सुन रहे मेरी गड्डी च जिहड़ा कंबल पे है, जिहड़ा मैं तौसे जांदियां लैके उत्ते सौना पिछली सीट ते, पहले तो वो देख आओ ना। नहीं सर उनको मुस्तकिल कर दें सर, आप उनको नौकरियों से निकाल रहे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही सर। अच्छा उनको हाँ, नहीं, मैंने कहा शायद कंबल की लोड़ है। नहीं सर, उनको नौकरी मिली हुई है सर, वो कई सालों से काम कर रहे हैं बेचारे। और जुनैद साहब कर देते, अभी जाके फाइल चेक करा के तो सारा कुछ बताना है मुझे, जी। और उसके बाद जुनैद साहब को भी रिपोर्ट भी देनी है। इस वक्त मौका बड़ा खतरनाक है, मीडिया हैंडल कर ले, तेरी मेहरबानी। मीडिया वाले बड़ी मुश्किल मानते होंगे। जुनैद साहब आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हो जाए बस। बड़े प्यारे कप ने सर जी, इसकी एक डुंडी उतार के इस कप में चाय भी पी लिया करें। ये मुझे तो बड़ा कप ठीक लग रहा है जी, ये छोटे कप तो अंडर 19 के लग रहे हैं। कोई बात नहीं जुनैद साहब, लोग मजाक करते हैं। हाँ जी। क्रिस गेल शुरू में डांस करता था तो सारे हंसते थे, बाद में जुनैद साहब उसने ऐसे छिक्के खड़काए हैं कि पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ है। ये शहबाज शरीफ भी जब लॉन्ग शू पहनता था तो सारे उसको मजाक बनाते, अब सारे वजीर आला के लिए कहते हैं कि लॉन्ग शू पहनो तो पानी में उतरो। तो इसलिए कोई बात नहीं, ये कप शाप इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे और मजीद आएंगे, फिक्र ना करें आप। अच्छा बुज़दार साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप सीरियस हैं। मेरा मतलब है कि आप पक्के हो गए कि आप बेहतरीन वजीर आला हैं। जुनैद साहब, जब मैंने ये अनाउंसमेंट सुनी थी ना, तो सच्ची बात है मेरा भी शुरू में यही ज़हन था कि किसी ने मेरा चेजा लिया। मगर जब इन्होंने मुझे पूरी रिपोर्ट पढ़ाई है तो मैं शाशदार रह गया हूं कि इसकी तो बड़ी अच्छी तफसील है। जुनैद साहब, उसमें 72% लोगों ने सेहत के हवाले से मेरी कारकर्दगी को बड़ा सराहा है। मैं तो शुक्र ये कर रहा हूं कि 72% लोग जो हैं वो खुद भी, इसका मतलब है, सेहतमंद हुए हैं। तो बाकी जो 28% नजले जुकाम खांसी में मुब्तला है ना जी, मैं उनकी तलाश में हूं कि किसी तरीके से उनको भी दवाई दारू पहुंचाऊं ताकि वो भी मुझे वोट दें। लेकिन मास्क पहन के उनकी तलाश कीजिएगा। नहीं जुनैद साहब, मास्क के हवाले से तो मैं इतना सेंसिटिव हूं कि मैंने ऑर्डर कर दिया है कि सारे लोगों को घरों में पोस्ट के जरिए, डाक के जरिए ये मास्क भेजो, ताकि कोई बंदा भी दूजे के मत्थे लग गए तो उसने मास्क पहना हो। दोनों जियों ने मास्क पहना हो ना जी, तो बेशक आधा घंटा, डेढ़ घंटा गप्पा मारन को फर्क नहीं पड़ा। तो जुनैद साहब, असल में ज्यादा तो पाकिस्तान में गप्पा ही मारते हैं ना लोग। लोगों के पास है मास्क लेकिन पहनते नहीं है। ये जुनैद साहब, असल में होता ही है, किसी को छोटा है, किसी का पहुंचा तंग होता है, किसी के कॉलर का कोई मसला होता है, किसी को मास्क के बाजू छोटे होते हैं, किसी का ये चेस्ट के ऊपर तंग पड़ता है। ये मसले तो हैं, लोग पहनते इसलिए नहीं है। हजूर वाला, मैं मास्क की बात कर रहा हूँ, सूट की नहीं कर रहा। हाँ मास्क, वो जुनैद साहब इसलिए भी कहीं नहीं ना पहनते लोग कि उनके कान तिलकने होते हैं,
वो मास्क पहनती हैं तो तिलक के वापस उतर जाता है। तो फिर दो प्लास्टिक के कान भी भेजे साथ। नहीं जुनैद साहब ये बात नहीं है, बड़ा आसान सा मसला है। छोटा रेग मार लेके कान के पीछे रगड़ के थोड़ा सा पहने ना तो फिर कान तिलकना नहीं रहा। असल में बुज़दार साहब लोगों को अभी तक ना मास्क पहनने के फवायद का अंदाजा नहीं है। आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें। जुनैद साहब मैं तो दोस्तों को कह के थक गया हूँ। मैंने तो हल्का अहबाब में बहुत बताया है इसके जुनैद साहब सिर्फ हेल्थ के अलावा भी बड़े फायदे हैं। अच्छा वो बताएं। आप यकीन माने बहुत फायदे हैं। आपने किसी के पैसे देने हो आप वैसे ही शर्मिंदगी से उसके सामने से भी नहीं गुजरते। तो मास्क पाओ दे आगे भी फिरी जाओ उसको पता ही नहीं चलता कौन फिर रहा है। बल्कि मास्क पहन के आप दूसरा नाम बता के उससे दूसरी बारी भी उधार ले तो मेरा मतलब है कि मास्क के और बहुत से फायदे हैं। बाद लोग घर में बीवी को बता के जाते हैं मैं किसी दोस्त की तरफ जा रहा हूं और बाहर निकल के दोस्त की बजाय दोस्ती के साथ फिर रहे होते हैं। दोस्ती के साथ। उनको पता ही नहीं होता उन पर जाई भी सौदा सलब लेने बाजार पहुंची होती है और देख लेती है और बाजार में ही डंडा सोटा हो रहा हो। मास्क पहनना हो तो अगली को पता ही ना लगे कौन किधर फिर रहा है। बीवी देख भी लिए तो कहते हैं मेरे साथ जमील बैठा हुआ है। ये भी ठीक है। आप अपना ये पहचाने भी जाएं तो दूसरे का नाम बदल लें। जमीला को जमील कर लें, वाह जी वाह, आसफा को आसफ कर लें। तो मेरा मतलब है कि मास्क जो है ना जी अब तो पूरी दुनिया में बड़ा पसंद किया जा रहा है। अब तो आपके सामने लोग अपने सूट के साथ मैचिंग करके मास्क बनवाने शुरू हो गए। बल्कि मलका बरतानिया जो है उन्होंने तो अपने हर सूट के साथ उस रंग का बनवा लिया है मास्क। और जुनैद साहब देखें अल्लाह का कितना करम है बुज़दार पे कि मैंने हमेशा पहना ही ग्रे कलर है और बाजार से जो मास्क मिलता है वो भी ग्रे कलर है। मुझे तो अल्लाह ताला ने वैसे ही मास्क जो है वो बख्श दिया। बुज़दार साहब एक मसला है मास्क का, मास्क लगाकर खाया पिया नहीं जाता। तो आप मास्क दर्जी से सिलवाएं और मास्क का गिरेबान रखवा लिया उसके बटन खोल के जितना मर्जी खाएं पिए। सर ये कह रहे मास्क का मसला नहीं है, इसके मास्क का मसला है। कहता मास्क का मसला है। सर जी आलू वाली रोटी के साथ मास्क आ गया था। गिरेबान चाक करके ना ते मास्क पा लिया। कोरोना के सच्चे तो होगे ना भाई मैं पाया है मास्क और अगो गिरेबान खुला है तो मैं की करा। बुज़दार साहब मसले को समझ नहीं रहे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा अवाम की बात कर रहा हूँ। नहीं तेनू आवाम ने शिकायत की थी या तेरे अपने ढिड ने शिकायत की थी? इधर रहिंदा नहीं तो किते आवाम दा हमदर्द वखरे ही अपने अल्लों किले गुज्जर सिंह दा एमएनए बने। सर जी जुल्फी मास्क लांदा ना लगदा बिल्ली दा मुंह बने।